Okay, so we are recording this lecture. This we uploaded to our YouTube as soon as we are done with the lecture over here. So, can you all in the comment section just write if you have read the chapter or not, so that I can understand my voice is also audible to you and you are prepared for today's session. Can you all hear me? Good. So, have you read for today's chapter, Viren? Chapter number 1, Nature and Significance of Management. Good. So what we will be doing is, okay, you haven't read the chapter. Okay, it's a very fairly easy chapter. I have sent the PDFs. You can see and read it. Also, after today's session, what we will be doing is I will be sending you notes for the chapter, like the same way we send notes for economics. We'll be sending. I have made notes for the same chapter first of OC, and I'll be sending you the notes post we have completed the chapter. Let us see today how much we can complete this chapter and till what levels do we reach. So let us begin the session. We'll just open the file. Those who have read the chapter and have any specific questions or doubt that they want me to raise during the session, you can write it in the comment section so that we can address it as soon as we reach it. So now before we start the session, let us look at first of all the index. These are the chapters that we will have to be doing in 12th standard for our board exams. And just a second, students, I have the so the first chapter, what it is nature and significance of management. Now this first chapter is basically the overview of your whole book. ये वो सारे टॉपिक्स जो आपको इंडेक्स के अंदर जितने भी टॉपिक्स दिख रहे हैं, ये सब शॉर्ट के अंदर फर्स्ट चैप्टर के अंदर दिए हुए हैं. सो इट विल बी बेसिकली टॉकिंग अबाउट द होल बुक दैट वी हैव और हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं. नाउ व्हाई इज दिस चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट? बिकॉज दिस चैप्टर in board exams come for 10 marks. Yes, out of 100, 10 marks this chapter comes for. Out of 12 chapters, one chapter holding that amount of weightage, so it shows the importance of this chapter. So now let us dive straight into our chapter, nature and significance of management. अब ये जो टर्म है मैनेजमेंट, ये हम लोगों ने बहुत बार सुना है. वी हैव, और इट इज़ नॉट अ न्यू वर्ड फॉर अस. और ये जो सब्जेक्ट है ये भी इम्पोर्टेंट इनके लिए जो इन फ्यूचर बिजनेस करना चाहते हैं अपना खुद का, जो एमबीए परस्यू करना चाहते हैं. दिस इज़ बेसिकली व्हाट इज़ बीइंग टॉट कि अपना खुद का बिजनेस में क्या क्या एस्पेक्ट्स होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं, आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए. एक एमबीए के अंदर क्या क्या सिखाया जाता है, बीबीए के अंदर क्या क्या सिखाया जाता है, वो ये सब्जेक्ट जो है उसका पार्ट है. So now I would request you all, you can switch on your mics and we can have a honest discussion first of all. So students, um, you can start. We'll start the discussion, but you can tell me what is management as per you. आपके लिए management का क्या definition है? Anyone who wants to take a guess? Okay, we'll ask with Tushar. Tushar, if you would want to take a guess, what is management? Hello, Tushar. Okay, Tushar is probably not answering, so we'll move to another person. लेकिन see, it does not depend कि आपकी definition सही है या गलत है.
what we want to figure out is, are you clear with the concepts or not? Let's see, we have जो एम्प्लॉयज़ के लिए अच्छा एनवायरनमेंट बना के रखे जिस काम में करने में उन्हें मज़ा आए. Not exactly, not exactly तुषार, this is not मैनेजमेंट. मैनेजमेंट एक बहुत जनरल टर्मिनोलॉजी है जो कि हम रेगुलर डे में भी यूज़ कर सकते हैं. ज़रूरी नहीं है कि एम्प्लॉयज़ की ही बात हो. ब्रेन का वर्ड है कंट्रोल. कंट्रोल क्या कंट्रोल करना है वीरेन आपको? वर्क विद टाइम्स, जो टाइम के साथ वर्क करे. नहीं नहीं नहीं. मैनेज करना क्या होता है? सबसे पहले तो मैनेजमेंट का कोर वर्ड है मैनेज. डज व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड मैनेज? कोई चीज को हैंडल करना मीन्स मैनेज करना. तो मैनेजमेंट इन सिंपल डेफिनेशन इज द आर्ट और द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन. कोई भी काम को करवाना इज नोन एज मैनेजमेंट. जस्ट अ सेकंड. ओके, तो आई होप मैनेजमेंट का जो डेफिनेशन है वो आपको अभी क्लियर हो गया होगा कि मैनेजमेंट मतलब इट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन, एंड इट इज नॉट विद रिस्पेक्ट टू जस्ट इंडस्ट्रीज. के कंपनीज के अंदर ही मैनेजमेंट होता है, स्पोर्ट्स में मैनेजमेंट होता है, रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स में मैनेजमेंट होता है, स्कूल में मैनेजमेंट होता है. तो देर इज मैनेजमेंट एवरीवेयर एंड इट इज़ अ यूनिवर्सल थिंग. तो जस्ट इसको हमें इंडस्ट्री के या एक बिजनेस के पर्सपेक्टिव से नहीं देखना चाहिए, बट मैनेजमेंट इज़ अ यूनिवर्सल थिंग जो कि हर जगह पाया जाता है. So now let us dive in the chapter straight away. Management exists since ancient time in the primitive era of Stone Age. हंटर गैदरर्स, ठीक है, उसमें प्लानिंग, सुपरविजन, कोऑर्डिनेशन, गाइडेंस लगती थी. अगर अगर हम एक से ज़्यादा लोग कभी भी काम कर रहे हैं तो वी विल नीड सम सॉर्ट ऑफ प्लानिंग. हमें अभी इमेजिन करो कि एक मेरा काम है, बहुत सिंपल सा टास्क है कि बोर्ड, एक जने को मैंने टास्क दिया है कि बोर्ड पे लिखो, ठीक है, और दूसरे को मैंने बोला है रफ कर दो. तो जैसे ही तुम लिख रहे हो वो रफ कर दे रहा है. तो क्या वो एफिशिएंट वे है? वो नहीं है. तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा मैनेजमेंट लाना पड़ेगा कि मैं उसको इंस्ट्रक्शंस दूंगा, कि है ना, कि मैं कंट्रोल करूंगा कि भाई पहले वो लिख ले पूरा, उसके बाद यू वेट फॉर 5 मिनट्स एंड देन यू रब द बोर्ड. तो इसको मैनेजमेंट बोलता है. और ये एंशियंट टाइम से चला आ रहा है, जब लोग हंटिंग करते थे, गैदरिंग करते थे. इमेजिन करो, एक का काम है छुप के वार करना और दूसरे का काम है कि है ना जानवर को बुलाना. तो अभी वो दोनों अगर साथ में कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे, उनमें कोई उनको ढंग से गाइडेंस नहीं मिलेगी, तो क्या उनको फूड वो हंट कर पाएंगे? दैट इज एज सिंपल एज इट गेट्स. सो man, no sooner did human being realize his limitation than management became essential to achieve his objectives with the help of others. Man tries to get maximum satisfaction using minimum resources. तो ये हमारे लाइफ का मोटो हो जाना चाहिए एक मैनेजमेंट स्टूडेंट, एक बिजनेस के लिए, कि मेरे को सबसे मिनिमम रिसोर्सेज यूज करके मैं कैसे अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकता हूँ. See, this is one thing which all businesses, if you want to be a businessman, a successful businessman in the future, if you want to be a management student, this is the core idea. How do you maximize the profit of your company? By using less resources. तो वो less resources पे तभी हो सकता है जब you work it in a very efficient manner. जब तक हम एकदम 100% efficiency पे काम नहीं करेंगे तब तक वो चीज़ possible नहीं है. In business, sole proprietorship, एक मिनट, these functions are known. और ठीक है, when more than one person joins hand for completion of work in a systematic manner, a need of planning and delegation of authority and responsibility arises. तो delegation of responsibility, मैं एक आदमी हूँ, मैं लोगों को टास्क असाइन कर रहा हूँ. इमेजिन करो स्कूल के अंदर ही मैं सुपरवाइजर्स को टास्क असाइन करता हूँ, सुपरवाइजर्स जो है टीचर्स को टास्क असाइन करते हैं. तो डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि डेलीगेट करना मतलब किसी को काम समझा के उन्हें उनसे उनके थ्रू वो काम करवाना. डेलीगेशन इज मैनेजमेंट का कोर नियम के आप लोगों से काम करवा सको. इन सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म्स एंड पार्टनरशिप फर्म, ये मेरे को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है. प्रोप्राइटरशिप फर्म क्या होती है और पार्टनरशिप क्या होती है ये आपको पता है ऑलरेडी.
were being managed by owners themselves. So अब अभी क्या होता था पहले है ना, छोटी कंपनीज होती थी, छोटा बिजनेस होता था। इमेजिन करो आप एक किराने की दुकान चला रहे हो और आप अकेले मैनेज कर रहे हो, वो तो इट इज़ नॉट डिफिकल्ट। बट अब आपके पास आप है ना एक रिलायंस मार्ट जैसा या डी मार्ट जैसा है ना स्टोर चला रहे हो, तो इज इट सेम? नहीं ना, उसके अंदर आपको आपके पास वहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ एम्प्लॉयज हैं, यहाँ पे आप अकेले काम कर रहे हो। तो अभी एक ही एम्प्लॉय अगर 3-4 काम करके ओवरलोड कर दिया है आपने उसको, और एक एम्प्लॉय है जो बिल्कुल फ्री है, तो इट इज़ नॉट एफिशिएंट मैनेजमेंट। तो आपको वो सब भी मैनेजमेंट के अंदर आता है। अब आ जाते हैं फर्स्ट के मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। तो मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट के अंदर यहाँ पे 3 बहुत बड़े जो हैं महानुभव लोग हैं जिन्होंने है ना उनकी डेफिनेशंस को कंसिडर किया। ये जो क्वेश्चंस है ना, ये जो है ये क्वेश्चन 1 मार्क के लिए आ सकता है, बट ये क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा 1 मार्क के लिए कि आपको नाम दिया होगा लोगों का और आपको उनका है ना बताना पड़ेगा कि उन्होंने बोला क्या था। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट पूरी बुक के अंदर इतना सब याद करना। तो बट आपको कीवर्ड्स एसोसिएट करने पड़ेंगे इनके साथ कि भाई कूंजन ओडोनल आ रहा है, तो सबसे सिंपल डेफिनेशन उनकी थी, जिसका सबसे डिफिकल्ट नाम उसकी सबसे सिंपल डेफिनेशन। तो मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। डेलीगेशन करना का सिंपल मतलब है मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग डन थिंग्स डन थ्रू अदर्स, लोगों से काम करवा देना। लिविंगस्टन ने क्या बोला था? मैनेजमेंट इज अ फंक्शन ऑफ अचीविंग प्री डिटर्मिन्ड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ बिजनेस यूनिट विद द मिनिमम टाइम एंड कॉस्ट एज वेल एज मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्स। मतलब सबसे कम टाइम में और सबसे कम कॉस्ट के अंदर अपने जितने भी रिसोर्सेज है उनको कम कम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करके अपने बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर लेना। अगर मेरे बिजनेस का गोल है कि मेरे को 100 रुपये कमाना है, तो वो मिनिमम खर्चा करके वो 100 रुपये कैसे कमाना है, ये मैनेजमेंट का फंक्शन। जॉर्ज आर टेरी, ये नाम इस बुक में और 3-4 बार आएगा, तो इनके बारे में एक बार पढ़ लेते हैं इन्होंने क्या बोला डेफिनेशन के बारे में। Management is such a process which plans and controls men, machine, material, method, money and market। मतलब जितने भी एम से वर्ड होते हैं इसमें सारे लिख दिए एक साथ। इट प्रोवाइड्स लीडरशिप, कोऑर्डिनेशन, डायरेक्शन टू ह्यूमन एफर्ट्स विच हेल्प टू अचीव द बिजनेस ऑब्जेक्ट। तो जो भी चीज़ एक बिजनेस के लिए रन करने के लिए लग सकती है, आदमी, मशीन, मटेरियल, मशीन का यूज़ करने का तरीका, पैसा, मनी और मार्केट जहाँ पे बेचना है, वो सब प्रोसेस की प्लानिंग और कंट्रोलिंग। इट प्रोवाइड्स लीडरशिप, कोऑर्डिनेशन एंड डायरेक्शन। लीडरशिप मतलब कि एक रास्ता दिखाता है, कैसे मिलजुल के काम करना है, वो कोऑर्डिनेशन बताता है, और डायरेक्शन किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है वो गाइड करता है। तो दीज आर डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ ये जो है अभी मैंने जो नोट्स बनाए हैं, आई जस्ट शो यू। वैसे आप लोगों का टाइम टेबल भी अभी बन रहा है करंटली, and there'll be new teachers who will be joining us for different subjects for the online sessions। तो आप लोगों को रोज़ टाइमली अवेलेबल रहना है सेशंस के लिए। तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं जो नोट्स के अंदर जो मैंने बनाया है, ये फर्स्ट जो इंट्रोडक्शन है वो इतना ही है कि ये 3 लोगों की अलग अलग मैनेजमेंट की डेफिनेशन है। आपको कुछ अगर याद नहीं रहे तो मैनेजमेंट की सबसे इजी डेफिनेशन याद कर सकते हो आप। व्हाट इज मैनेजमेंट वैसे तो कभी पूछा नहीं जाएगा, बट दिस इज द बेस्ट वे टू रिमेम्बर मैनेजमेंट क्या होता है। अब आ जाते हैं हम नेचर ऑफ मैनेजमेंट पे। आई जस्ट थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। मीनवाइल अभी तक अगर सबको कुछ भी डाउट है किसी को, तो वो जस्ट कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। आई कैन आंसर यू एज सुन एज आई रीड देम। और कहीं भी समझ में आ रहा हो तो यू कैन जस्ट स्टॉप मी। आप अपना माइक कभी भी स्टार्ट करके है ना मेरे को रोक सकते हैं। इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड समथिंग यू कैन जस्ट आस्क मी कि इसका क्या मीनिंग है। दिस इज़ अ वेरी, ज़्यादातर जितना भी हम इंटरेक्ट करेंगे उतना ज़्यादा बिजनेस स्टडीज़ कर सकते हैं, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी थियोरेटिकल सब्जेक्ट। तो इसमें जितना ज़्यादा डिस्कशन करेंगे उतना ज़्यादा ही हमारा नॉलेज बढ़ेगा।
तो नाउ वी कम टू नेचर ऑफ मैनेजमेंट कि मैनेजमेंट का नेचर क्या होता है। नेचर का सिंपल मतलब होता है कि उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जिससे मैनेजमेंट से अचीव कर सकते हैं। तो इट इज़ अ यूनिवर्सल प्रोसेस, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में आपको बता दिया था। मैनेजमेंट इज नॉट ओनली रिक्वायर्ड इन इंडस्ट्रीज बट इज अप्लाइड टू वेरियस फील्ड्स, और सब जगह पे सब डिपार्टमेंट्स में मैनेजमेंट का यूज होता है। इट इज गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। मैनेजमेंट इज अ टूल एंड नॉट अटेनमेंट। आपका एंड गोल जो होता है वो मैनेजमेंट नहीं हो सकता कि हाँ मेरे को मैनेजमेंट तक पहुंचना है, ये एंड गोल नहीं है। बिजनेस के लिए ऑब्जेक्टिव जो है कि मेरे गोल्स ये हैं, मेरे को इतनी बड़ी कंपनी बनना है, मेरे को इतने एम्प्लॉयज लाने हैं, वो जो है वो मैनेजमेंट के थ्रू अचीव किया जा सकता है। जैसे आपकी एक छोटी सी स्पोर्ट्स की शॉप होगी मान लो, और आपका टर्नओवर होगा 5 करोड़ जैसे। तो आप एज मैनेजमेंट डिसाइड करोगे, आप ओनर हो तो आप डिसाइड करोगे कि अब मुझे इस 5 करोड़ को मेरे को 10 करोड़ में कन्वर्ट करना है इन कमिंग 3 ईयर्स। और फिर आप उसके लिए एक रास्ता बनाओगे। यू विल प्लान, यू विल डायरेक्ट, यू विल लोग अगर हायर करने होंगे तो ये आप गोल्स सेट कर रहे हो। तो this can be done through management. So management is a tool which will help you achieve your goals. Group activity. Management is a collective activity carried by 2 or more people. तो सिंपल सी बात है, मैनेज वहीं पे करना पड़ेगा जहाँ पे हम इंडिविजुअल टास्क से बढ़ के दो या दो लोगों से ज़्यादा लोगों में कोऑर्डिनेशन करने की बात आएगी। इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, वंस बिगिन इट कैन नॉट बी स्टॉप्ड। मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड तो होता ही है, बट अगर मान लो आपने 10 करोड़ की कंपनी बनने का डिसीजन लिया था, आप बन गए, तो क्या फिर उसके बाद मैनेजमेंट खत्म? नहीं, मैनेजमेंट कंटिन्यू होता है। फिर आप आगे के गोल सेट करते हो, आप नए टारगेट्स बनाते हो, एंड दिस कीप्स ऑन गोइंग एंड गोइंग एंड गोइंग। So the cycle of defining objectives, achieving them and redefining them continuously goes on. So it is a continuous process, ये कभी भी रुकता नहीं है। आपने अचीव कर लिया, आप नए गोल्स बनाओगे, सीधी सी। ह्यूमन प्रोसेस। मैनेजमेंट एक ह्यूमन प्रोसेस है। हमने कितनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप कर ली होगी, हमने कितना कुछ डेवलप कर लिया होगा, बट दिस इज नॉट समथिंग अ मशीन कैन डिसाइड। ये एक एआई बेस्ड डिसीजन नहीं होता है। मैनेजमेंट में सारे सारे ह्यूमन एलिमेंट्स होते हैं, और मशीन्स ये डिसीजन नहीं ले सकते, बिकॉज देयर कैन बी डिफरेंट बिजनेस प्रॉब्लम्स जो कि एक छोटी से छोटी इशू को भी शायद मशीन ना समझ पाए, बट ह्यूमंस कैन। द मैनेजमेंट इज डन बाय ह्यूमन बीइंग्स एंड फॉर ह्यूमन बीइंग्स। आप मशीन के ऊपर मैनेजमेंट नहीं लगाते हो कभी भी। आप मशीन को बोलोगे ये तेज चल, तो नहीं हो सकता ना काम। तो वो वाली चीज़ है, इट इज़ ए ह्यूमन प्रोसेस, और आप उसको ह्यूमन वे में ही डील करते हैं। डिसीजन प्रोसेस इज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट को कॉन्स्टेंटली बिजनेसेस के रिगार्डिंग में डिसीजन लेने पड़ता है। अब जैसे लेट्स टेक करंट सिनेरियो इनटू अकाउंट कि अभी लॉकडाउन हो रखा है, एंड आपके गवर्नमेंट के नोटिस आ रखे हैं दैट यू कैन ओपन योर बिजनेस, बट नाउ यू हैव यू बीइंग द मैनेजर और यू बीइंग इन द मैनेजमेंट हैज टू टेक द डिसीजन कि क्या ये सही टाइम है खोलने का, क्या अभी मेरे पास लोग आएंगे, क्या मुझे इस समय पे मेरे पास इतनी सेफ्टी है, या फिर मैं ऑनलाइन बिजनेस कर सकता हूँ ऐसे लॉकडाउन के टाइम पे, और होम डिलीवरी स्टार्ट कर सकता हूँ जस्ट टू मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज रनिंग वेरी स्मूथली। तो ये जो पॉइंट है डिसीजन प्रोसेस, ये मैनेजमेंट का फंक्शन है, ये मैनेजमेंट का एक काम है जो उसका कंटिन्यूअसली चलता रहता है। जैसे जैसे नए सिचुएशन आएंगे वैसे वैसे मैनेजमेंट को डिसीजन लेना पड़ेगा। Management as science, art and profession. Now this is explained in the later section. तो मैं डिटेल में तब समझाऊंगा, बट मैं अभी समझा देता हूँ एकदम शॉर्ट वे में कि जैसे साइंस में रूल्स होते हैं वैसे ही मैनेजमेंट के अंदर भी थोड़े रूल्स होते हैं। आर्ट के भाई जैसे जैसे आपकी स्किल्स बढ़ती है वैसे वैसे है ना, आपका मैनेजमेंट वे भी इफेक्टिव होता जाता है, तो वो आर्ट के टर्म्स में रिस्पेक्ट किया गया। और प्रोफेशन, तो आज के टाइम में मैनेजमेंट, मैनेजर हैज़ बिकम अ प्रोफेशन। आज क्योंकि मैनेजर्स ने भी जो है एकदम प्रोफेशनल कोर्सेज, उनका नॉलेज बना रखा है, उनका उन्होंने एकदम प्रोफेशनलिज्म ले रखा है लॉयर्स, डॉक्टर्स, अकाउंटेंट्स की तरह। तो अब मैनेजमेंट को भी एक प्रोफेशन कंसिडर किया जाता है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब ये जो क्वेश्चन है, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था कि कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर ऑफ मैनेजमेंट, दिस कैन कम फॉर 3 मार्क्स। तो आपको है ना ये जो पॉइंट्स हैं ये याद रहने चाहिए।
तो ये 3 मार्क्स के लिए एग्जाम में आ सकता है बच्चों। जो मैंने जो नेम्स बताए थे आपको कि ये एक सेंटेंस लिखा होगा पूरा और वो 4 नाम दे देंगे और उसमें से आपको चूज करना पड़ेगा कि ये किसने बोला था, ये 1 मार्क का आ सकता है। नेचर ऑफ मैनेजमेंट जो है ये 3 मार्क्स का आ सकता है। तो इसको शॉर्ट वे में एकदम कीवर्ड से याद रखना है। देखो इसमें रटना कुछ भी नहीं है, यू हैव टू जस्ट नो द वर्ड और आप वर्ड से खुद डेफिनेशन लिख सकते हो पूरी। ये इतना इजी सब्जेक्ट है, तो इसके अंदर कुछ भी याद नहीं करना है। मैंने जो नोट्स बनाए, ये चैप्टर कुछ अराउंड 30 पेजेस का है, 25 पेजेस का है, और मेरे जो नोट्स हैं वो अराउंड 10 पेजेस के हैं। तो वो मैंने काफ़ी जितना भी कट शॉर्ट करके और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता सकता था वो मैंने बता दिए हैं। अब आ जाते हैं इम्पोर्टेंस के अंदर। तो इम्पोर्टेंस के अंदर अब आप देखोगे कि क्यों इम्पोर्टेंट है। कैरेक्टरिस्टिक मतलब मैनेजमेंट से होता क्या क्या था, और अब इम्पोर्टेंस मतलब इसके इससे फायदा क्या है। नेसेसरी इन एवरी फील्ड, हर फील्ड में चाहिए, वो ऊपर वाला यूनिवर्सल वाला पॉइंट रिपीट हो रहा है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऊपर बोला था सेम चीज के भाई सबसे कम चीजें यूज करके है ना कैसे बेस्ट से बेस्ट। अवॉइड्स वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज मतलब चीजें वेस्ट नहीं करके कैसे है ना मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल सके, वो उससे फायदा होता है मैनेजमेंट से। अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, अगर हमने कोई गोल्स बनाए तो वो कौन गाइड करेगा कंप्लीट करवाने के लिए, मैनेजमेंट ही तो गाइड करेगा। तो इससे क्या फायदा होता है, हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव हो जाते हैं। यूजफुल फॉर सक्सेस ऑफ बिजनेस, अगर एक बिजनेस सक्सेसफुल है तो 1000 से 1000 टाइम्स में उसका हर बार यही प्रूव होता है कि उसका मैनेजमेंट इफेक्टिव है। इफ अ कंपनी फेल्स इट मीन्स इट्स मैनेजमेंट वाज इनइफेक्टिव। इंक्रीज इन जॉब अपॉर्चुनिटी, सीधी बात है कि भाई अगर कंपनी अच्छी चल रही है तो और एक्सपांड करेगी और लोगों को हायर करेगी, अगर खराब चल रही है तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी और लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट झेलना पड़ेगा। तो नाउ इंक्रीज इन प्रॉफिट, सीधी बात है अगर हम कम से कम रिसोर्सेज यूज करके हम एकदम कॉस्ट कटिंग में अगर सब चीज मैक्सिमम तरीके से बना सकें तो हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। और यही एक एडवांटेज होता है मैनेजमेंट से कि भाई हमारा जो आपकी कंपनी का आज प्रॉफिट क्या है, यही आपकी कंपनी को जज करता है कि आपकी कंपनी सक्सेसफुल है या नहीं, आपका बिजनेस सक्सेसफुल है या नहीं। आप साल में 10-10 करोड़ का लॉस कर रहे हो, 5-5 करोड़ का लॉस कर रहे हो, तो क्या आपकी कंपनी को सक्सेसफुल बोला जाएगा? नहीं बोला जाएगा। बट आपका ग्रोथ चल रहा है रेगुलरली, आप है ना अर्न करके दे रहे हो अपने इन्वेस्टर्स को, तो बोला जाएगा ना कि आपकी कंपनी सक्सेसफुल है। ठीक है। तो अब सोशल बेनिफिट, आज एक अगर आपकी कंपनी अच्छी चलेगी, आप अपने समाज में है ना समाज वालों का नाम करेंगे, आप है ना उतना ही एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, आप कंट्री की जीडीपी में है ना अपना हाथ बढ़ाएंगे, तो इससे क्या होता है, सोशल बेनिफिट तो हो रहा ही और साथ में नेशनल बेनिफिट भी होता है कि हमने एक तो अनटैप्ड ह्यूमन रिसोर्सेज, जो अनएम्प्लॉयड लोग बैठे थे उनको है ना हमने एम्प्लॉयड किया है, हमने कंट्री की जो है नेशनल डेवलपमेंट में हेल्प की है। तो कोई भी बिजनेस छोटा बिजनेस नहीं होता, इट ऑलवेज हैज अ नेशनल मोटिव। जस्ट टू टेक अ ब्रेक, अभी हम आ जाते हैं वापस एक बार स्टूडेंट्स की तरफ। यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो बता सकता है। क्या होता है ना बीच सेशन में कुछ लोग चले जाते हैं, तो इट इज़ गुड टू ऑलवेज कीप अ ट्रैक के कौन है कौन नहीं है, कौन जा रहा है कौन आ रहा है। तो जितने लोग भी हैं उनको क्या समझ में आ रहा है, उनको कोई भी डाउट है, कुछ कंफ्यूजन है, कुछ ऐसा लग रहा है कि क्लियर नहीं है, तो दे कैन शेयर इट विद मी राइट नाउ, वरना हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है महेश, तुषार, आप लोगों को समझ में आ रहा है, दैट आई कैन गैदर विद दिस इंफॉर्मेशन। ठीक है। अ, ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फिर मैं आप लोगों को माइक को अनम्यूट करने के लिए बोलूँगा आप लोगों को, ताकि क्या है कि हम लोग वन ऑन वन डिस्कशन कर सकें। हमारे साथ पूजा मैम भी हैं साथ में, और पूजा मैम जो है आपके थोड़े थोड़े सेशंस जो हैं पूजा मैम भी लेंगे ओसी के करंटली, और इन्होंने आपके लिए थोड़े वीडियो लेक्चर्स भी रिकॉर्ड किए हैं, तो वो आफ्टर द सेशन आई विल बी सेंडिंग यू देम। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब मैनेजमेंट एज आर्ट, साइंस और प्रोफेशन, जो कि मैंने आपको बोला था कि हम डिस्कस करने वाले हैं, तो आ जाते हैं उसके ऊपर।
पूजा मैम कौन है? अरे तो अभी क्या मैं तेरे को बताऊं क्या आके कि पूजा मैम कौन है? दिखा बता दूंगा, टेंशन क्यों ले रहा है? मैम का इंट्रोडक्शन हम आफ्टर द सेशन गेट्स ओवर, तब मैं मैम का एक इंट्रोडक्शन सेशन रख लूंगा, ठीक है? बट अभी के लिए इधर फोकस करते हैं। मैनेजमेंट इज अ साइंस। जैसे साइंस के अंदर रूल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, डेरिवेशन के थ्रू कि भाई ये वजह इस वजह से होती है, ये चीज़ इस वजह से होती है, जैसे साइंस में पर्टिकुलर आंसर्स होते हैं, मैनेजमेंट के अंदर भी ये कैरेक्टरिस्टिक है कि कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करके कुछ उन्होंने ना रूल्स बना रखे हैं कि भाई ऐसा हो तब ऐसा करना चाहिए। और किस बेसिस पे बना रखे हैं ये रूल्स? उन्होंने पुरानी केस स्टडीज देखी हैं, पुरानी कंपनीज को स्टडी किया है, और उस बेसिस पे उन्होंने ये रूल्स और टर्मिनोलॉजीज बनाई है। इसीलिए मैनेजमेंट कैन बी कंसिडर्ड एज अ साइंस। थ्रू दिस प्रिंसिपल कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, मशीन कैपिटल, मेथड एक्सेट्रा इज डन। सो इनसे क्या, साइंस में तो साइंस के फैक्ट्स होते हैं, साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं। मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है? वी स्टडी द प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, मशीन कैपिटल, कैपिटल मीन्स मनी, और फाइनेंस ऑफ द कंपनी। thus मैनेजमेंट इज अ साइंस। डॉक्टर जॉर्ज टेरी, ये वापस से आ गया नाम इनका। साइंस टीचर्स वांट टू नो। जैसे साइंस सिखाता है वैसे ही मैनेजमेंट भी हमें सिखा रहा है कि कैसे कैसे बिजनेस को हैंडल करना चाहिए। मैनेजमेंट इज एन आर्ट। अब आर्ट के केस में बहुत सिंपल सी चीज है सर, एज एज मोर एंड मोर यू गेट टू प्रैक्टिस योर आर्ट, यू बिकम मोर प्रोफिशिएंट इन द स्किल्स। आपकी जैसे जैसे स्किल्स बढ़ेगी, कब? जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, आपने ज़्यादा टाइम अपने आर्ट को दिया होगा। सेम रूल्स अप्लाई फॉर मैनेजमेंट। सो आपकी पर्सनल स्किल्स, आपकी इंसाइट, आपका जो क्लेवरनेस है, दे ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज इनफ नहीं है। आपने थियोरेटिकल नॉलेज सारा है ना जितना भी अवेलेबल था ले लिया, बट आपको अप्लाई करना नहीं आ रहा उसको। आपको स्किल्स, आपने ना जितना भी पिछले एक्सपीरियंसेस थे उनसे सीख के अगर आप वापस नहीं लगा पा रहे, देन यू आर नॉट कंसिडर्ड एज अ गुड मैनेजर। तो सेम डॉक्टर जॉर्ज टेरी वापस, आर्ट टीचर्स वांट टू डू। तो कैसे करना है, कैसे उस नॉलेज को अप्लाई करना है, ये आर्ट के थ्रू पता चलता है। और यही मैनेजमेंट के अंदर हम बोल सकते हैं, मैनेजमेंट इज ऑल्सो एन आर्ट। तो मैनेजमेंट इज नीदर साइंस नॉर आर्ट, बट इट इज अ स्वीट कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, देयरफॉर इट कैन बी सेड मैनेजमेंट इज नीदर प्योर। ठीक है, कोई मतलब का नहीं है ये लाइन। आगे बढ़ते हैं। मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन। प्रोफेशन इज एन एक्टिविटी वेयर स्पेसिफाइड नॉलेज इज रिक्वायर्ड। अभी अगर आपको एक सीए बनना है तो आपको है ना सीए के जितने सब्जेक्ट्स होते हैं उनका नॉलेज होना चाहिए। आपको लॉयर बनना है, आपको लॉ के बारे में पता होना चाहिए, आपको डिफरेंट कोर्ट्स के बारे में पता होना चाहिए, कोर्ट्स का ऑपरेटिंग प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए। और ये सब सोसाइटी में क्या होता है, ये सब कोर्सेज आप पैसे देते हैं और आपको आपको है ना इनकी सर्विसेज मिलती है। जैसे डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर को पैसे दिए तो डॉक्टर ने आपको ठीक कर दिया, इंजीनियर को पैसे दिए तो उसने जो भी कंस्ट्रक्ट करना था वो कर दिया। तो ये प्रोफेशनल्स कंसिडर किए जाते हैं। सेम मैनेजर्स भी आज के टाइम में एक प्रोफेशन बन चुका है। यू गिव अ मनी टू अ मैनेजर एंड ही विल मैनेज योर बिजनेस। इट रिक्वायर्स अ स्पेसिफाइड नॉलेज। तो एमबीए की डिग्री, बीबीए की डिग्री आज हमारे पास अवेलेबल है मैनेजर्स बनने के लिए। इंक्रीजेज इन नॉलेज एंड रिसर्च। तो जैसे लाइक अदर प्रोफेशन इन मैनेजमेंट टू, ड्यू टू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग देर इज एन इंक्रीज इन नॉलेज एंड रिसर्च। तो जितना ज़्यादा आपने टाइम डेवलप किया होगा मैनेजमेंट फील्ड के अंदर, उतना ज़्यादा आपका नॉलेज होगा, और उतना ज़्यादा आप है ना रिसर्च के अंदर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि नई कंपनीज अगर कोई आ रही है तो वो कैसे हैंडल करेंगी। प्रोफेशनल एसोसिएशन मतलब क्या है ना, जैसे सीए का है ना कमेटी, सीए का है ना एक वो होता है जिसमें सिर्फ सीएज रहते हैं, वैसे ही एमबीएस के भी ऐसी ही एक एसोसिएशन होती है जिसमें सारे एमबीए इकट्ठे रहते हैं। जैसे देर आर डिफरेंट कॉलेजेस जो अपना एलमनाई ग्रुप जिसको बोलते हैं, तो वो उनका एक प्रोफेशनल एसोसिएशन बन जाता है। Implementation of code of conduct. Each of the professional association frame code of conduct for its members. Same MBAs के लिए, CAs के लिए, लॉयर्स के लिए, सबके लिए थोड़े कोड ऑफ कंडक्ट है, सब ने अपने अपने बना के रखे हैं। और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे सीए की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ही शुड बी लॉयल टू हिज क्लाइंट एंड शुड नॉट डिस्क्लोज द इंफॉर्मेशन ऑफ हिज क्लाइंट। वैसे ही लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ना अगर उसके क्लाइंट ने क्राइम कमिट भी किया और वो कोर्ट में जाके बोल दे नहीं मेरे क्लाइंट ने तो बोला उसने खून किया है,
तो क्या वो अच्छा लॉयर है? नहीं है। उसकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसके क्लाइंट को हेल्प करने की। तो वैसे ही एमबीए की एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि चीज़ों को मैनेज करने की, अपने कंपनी को कैसे बेस्ट पॉसिबल सिचुएशन में वो लाके खड़ा कर सके। ये भी अगर आएगा मैंने ये जो तीनों थे, मैनेजमेंट एज आर्ट, साइंस और प्रोफेशन, तो प्रोफेशन वाला जो पार्ट है दैट कैन कम फॉर 3 मार्क्स। इसके अलावा इसमें क्वेश्चन नहीं फॉर्म होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। काफ़ी अच्छी स्पीड पे चल रहे हैं हम लोग। अब यहाँ से काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगा और यहाँ से बहुत प्रैक्टिकल हो चुका है चीज़ें। तो अभी एक बार के लिए हम रिक्वेस्ट करूँगा जितने भी स्टूडेंट्स अभी तक सुन रहे हैं, जो नहीं भी हैं तो अभी पता चल जाएगा, सब लोग अपना माइक स्विच ऑन कर सकते हैं। वी विल हैव अ कॉन्वर्सेशन। तो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू स्विच ऑन देयर माइक। ओके, ठीक है। तो तुषार है हमारे साथ। ये टीडीएफ गेमिंग कौन है? संयम, चिन्मय, चिन्मय है, ओके। और वीरेन है हमारे साथ। ठीक है। तो ठीक है, तो अभी हम एक बार के लिए थोड़ा सा जनरल डिस्कशन करते हैं कि अभी जैसे अज्यूम कर लेते हैं कि हम एक स्कूल चला रहे हैं, हम लोग मिल के, हम सब मिल के एक स्कूल चला रहे हैं। तो तुषार जो है वो स्कूल का ट्रस्टी है, ठीक है। महेश जो है वो स्कूल का प्रिंसिपल है। और चिन्मय जो है वो स्कूल का सुपरवाइजर है। तो अभी सबसे पहली बात तो आप बताओ कि कौन हुआ टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर? ट्रस्टी हुआ, तुषार हुआ टॉप लेवल मैनेजमेंट। बहुत सिंपल सी बात है। जो सबसे हाई लेवल की पोजीशन रहेगी वो ट्रस्टी की रहेगी। सेकंड पोजीशन किसकी रहेगी? महेश, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल की रहेगी। ओके, वेरी गुड। प्रिंसिपल विल होल्ड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशन। और थर्ड पोजीशन किसकी रहेगी? सुपरवाइजर की रहेगी, ठीक है। अभी इस हायरार्की में ये पोजीशन बनती है, ठीक है। नाउ वीरेन, यू आंसर मी दिस कि अगर हमें एक नई ब्रांच खोलनी है स्कूल की, तो इन तीनों में से कौन वो डिसीजन लेगा? ट्रस्टी लेगा। बहुत सिंपल सी बात है। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है बिजनेस के प्लान्स के बारे में, फ्यूचर ग्रोथ के बारे में डिसीजन लेता है, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ कि स्कूल में मेरे पास कंप्यूटर्स के लिए मेरे को एक नया टीचर लाना है, तो इसका डिसीजन कौन लेगा? प्रिंसिपल लेगा, करेक्ट। तो स्टाफिंग कंट्रोलिंग कौन कर रहा है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट कर रहा है। अब कंप्यूटर टीचर आ गया है नया, अब उससे काम करवाना है, उसको सब समझाना है, तो वो कौन समझाएगा? सुपरवाइजर। तो अब तुम्हें ये तीन डिफरेंशिएशन समझ में आ गए टॉप, मिडिल और बॉटम लेवल मैनेजमेंट के अंदर। ये जो क्वेश्चन है, क्योंकि देखो ये एक बहुत क्लियर होना जरूरी है, क्योंकि टॉप, मिडिल, बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो है ये एग्जाम में 5 मार्क का क्वेश्चन बन के आ सकता है। तो ये कैसे 5 मार्क का क्वेश्चन बनता है, हम लोग एक बार वापस बुक्स की तरफ चलते हैं। तब तक के लिए आई विल रिक्वेस्ट कि अभी फॉर द मीन टाइम आप एक बार वापस अपना ऑडियो बंद कर दें, मैं एक्सप्लेनेशन कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद हम वापस से इसका डिस्कशन करते हैं। तो देर आर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट: टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, बॉटम लेवल मैनेजमेंट। तो सबसे अभी जो एक मैंने इमेज यूज की है नोट्स के अंदर, मैं वो दिखाना चाहूंगा इस समय। अ, ठीक। तो अब ये देखो, जैसा टॉप लेवल मैनेजमेंट की अथॉरिटी जो है, तो अथॉरिटी टॉप से बॉटम होती है और अकाउंटेबिलिटी जो होती है वो बॉटम से टॉप होती है। अब इसका मीनिंग क्या होता है वो मैं समझा देता हूँ। अथॉरिटी मतलब कितनी पावर है आपके पास, तो पावर सबसे ऊपर वाले लोगों के पास सबसे ज़्यादा होगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सीईओ, सीएफओ, इनके पास सबसे ज़्यादा अथॉरिटी है, बिकॉज दीज आर टॉप लेवल मैनेजमेंट। बट इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है काम से रिगार्डिंग में वो सबसे कम रहेगी, क्योंकि ये काम डेलीगेट करते हैं ये लोगों को।
बताते हैं। फिर आते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट, जो कि मैनेजर्स रहते हैं, परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर। ये इनका काम क्या है, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट से हमें इंस्ट्रक्शंस मिले हैं उनका, उनके बारे में है ना प्लानिंग करना, उनको एग्जीक्यूट करवाना। और सुपरवाइजर्स और सुपरिटेंडेंट्स कौन होते हैं, कि जो ऊपर से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, क्या उतना एग्जैक्ट क्वालिटी बराबर आ रही है कि नहीं आ रही है। तो इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रोडक्ट वाइज या सर्विस वाइज, वो सबसे ज़्यादा किसकी होती है, बॉटम लेवल मैनेजमेंट की होती है। तो आओ हम इसको एक एक लेवल मैनेजमेंट को फटाफट समझ लेते हैं। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट, इसका काम क्या है, टू ले डाउन प्राइमरी सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव्स। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स क्या है बिजनेस के। डायरेक्टर्स एक्ट एज ट्रस्टीज ऑफ बिजनेस एम्पायर। तो जैसी रोल ट्रस्टीज की थी स्कूल के अंदर, वैसे ही कंपनीज के अंदर डायरेक्टर की होती है। टू सैंक्शन द बजट प्रिपेयर्ड बाय डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। अब क्या होता है, नीचे के जो लोग होते हैं, जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट के होते हैं, वो लोग जैसे प्रिंसिपल होगा, स्कूल वाले ही केस कंसिडर करते हैं। तो एक एनुअल फंक्शन करवाना है, तो एनुअल फंक्शन कितने रुपए का होगा, ये डिसीजन प्रिंसिपल लेगा या ट्रस्टीज लेंगे। प्रिंसिपल बजट बना के भेजेगा, ट्रस्टीज उस बजट को अप्रूव करेंगे या डिनाई करेंगे बेस्ड ऑन देयर फंड्स अवेलेबल। तो बजट भेजने का काम किसका है, प्रिंसिपल का। मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम है बजट भेजना, प्रिपेयर करना काम जो बजट है वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, और अप्रूव करने का जो काम है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट का है। टू अबाइड बाय लॉ एंड टेक केयर ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट स्टेक होल्डर्स ऑफ बिजनेस। स्टेक होल्डर्स का मतलब क्या होता है, सबसे पहले कि आपकी कंपनी के साथ शेयर होल्डर्स नहीं, स्टेक होल्डर्स की बात हो रही है। तो स्टेक होल्डर्स होते हैं कि आपका एम्प्लॉय भी आपका स्टेक होल्डर हो गया, आपके जो जहाँ पे लैंड है वहाँ आसपास जो लोग हैं जो आपकी कंपनी से अफेक्ट होते हैं वो भी आपके स्टेक होल्डर्स हो गए, आपके जो कंज्यूमर्स हैं एंड प्रोडक्ट के वो भी आपके स्टेक होल्डर्स हो गए। तो सबका ध्यान रखना, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट का रूल होता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए ये एक सबसे बड़ा टास्क होता है। तो टू मेक स्ट्रेटेजिक डिसीजंस बाय मेकिंग लॉन्ग टर्म प्लान्स, हर बिजनेसेस को लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म प्लान्स दोनों रेडी रखने होते हैं। आज मैं अगर एक स्कूल चला रहा हूँ एंड आई एम इन द टॉप लेवल मैनेजमेंट, देन आई हैव टू कीप अ 5 ईयर विजन डाउन द लाइन, कि मेरे को नेक्स्ट 2 साल के अंदर एक सीबीएसई स्कूल खोलना है, इन फ्यूचर नेक्स्ट 10 years वील हैव अ कॉलेज। वरना अगर मैं शॉर्ट टर्म विजन रखूंगा कि भाई ये साल स्कूल का रिजल्ट निकालना है, वो मेरा लुकआउट नहीं है, दैट विल बी द लुकआउट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। ठीक है। टू एनालाइज एंड रिजॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स ऑफ मैनेजमेंट एज पर लीगल प्रोविजन। तो अब जितने भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं नीचे वाले मैनेजमेंट को, मिडिल मैनेजमेंट को, वो आपका सॉल्व करने का धर्म होता है। टू प्लान फॉर द एंटरप्राइज एंड इम्प्लीमेंट इट्स इम्प्लीमेंटेशन, टू सुपरवाइज इट। पूरी कंपनी के लिए आपको सारे प्लान्स बनाने होते हैं, और आपको ये देखना होता है कि मिडिल लेवल जो मैनेजमेंट है वो ढंग से इम्प्लीमेंटेशन करवा रहा है कि नहीं करवा रहा है। टू डू द फंक्शन लाइक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, डिविडेंड। अब आपकी कंपनी ने 100 करोड़ रुपए कमाए, इमेजिन करते हैं। तो अब ये 100 करोड़ रुपए में से आपको कितना नेक्स्ट बिजनेस में इन्वॉल्व करना है, कितना अपने शेयर होल्डर्स को है ना एक्स्ट्रा देना है, कितना उन एम्प्लॉयज को बोनस देना है जितना उनकी मेहनत पे था। ये टॉप लेवल मैनेजमेंट का डिसीजन होता है, और यही टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम होता है। टू एनालाइज रिपोर्ट्स ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज एंड गिव इंस्ट्रक्शंस अकॉर्डिंगली। ठीक है, उनको सब लोग अपनी अपनी रिपोर्ट्स भेजते रहते हैं कि हमने ये काम किया है, और वो अप्रूव करते हैं। अब मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे आ जाते हैं। मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या होता है, टॉप और बॉटम के बीच का एक लिंक होता है। तो जो बॉटम लेवल मैनेजमेंट पे होता है ना, वो डायरेक्ट कभी भी टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास जाके बात नहीं कर सकता। ये कंपनी में हायरार्की इसीलिए होती है कि आप बॉटम लेवल मैनेजमेंट वाला जो है वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट वाले के पास जाए, मिडिल वाला जो है वो टॉप वाले के पास जा सके। सो मिडिल लेवल मैनेजमेंट इज एन important लिंक बिटवीन टॉप लेवल एंड बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट। डिपार्टमेंट ऑफिसर्स, ठीक है, ये रोल्स होता है। दे हैंडल प्रोडक्शन, सेल्स, परचेज, फाइनेंस, पर्सनल। दिस लेवल इज नोन एज ऑफिसर्स लेवल। इसके अंदर क्या क्या होता है, इम्प्लीमेंट, जो भी ऊपर से सीईओ से जो बॉस से ऑर्डर आ रहे हैं उन्हें फॉलो करना, बजट प्रिपेयर करना, ठीक है, पॉलिसीज बनाना, और रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना, जो कि हमारे जो कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स जो हमारे ऊपर के जो बॉस लोगों ने बना रखे हैं उनको उनको पॉलिसीज, रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड करना, तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम है, और उन्हें वो अचीव करवाना।
टू टेक नेसेसरी स्टेप टू इंक्रीज एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज, के भाई जो उनके अंडर में डिपार्टमेंट है वो ज़्यादा बेनिफिट्स कैसे दे सकें, ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ओके, तो टू मेक अटेम्प्ट्स टू एंथूज एम्प्लॉयज ऑफ डिपार्टमेंट, मतलब अपने एम्प्लॉयज को खुश करना भी, उनके जो उनके अंडर में जितने भी लोग हैं उनको खुश रखना भी उनकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। और ठीक है, अभी इतने सारे याद, तुमको 9 के 9 याद नहीं भी रहे तो सी, योर रूल शुड बी ऑलवेज टू रिमेंबर 6 आउट ऑफ 9, क्योंकि एग्जाम के अंदर इतने इंपॉर्टेंट इतने पॉइंट्स लिख दोगे दैट विल बी मोर देन इनफ। वैसे तो 5 इंपॉर्टेंट होता है बट 6 याद कर लेने के, ताकि तुम्हारा एग्जाम के रिलेटेड में ये पर्पज सॉल्व हो जाए। टू हेल्प द टॉप लेवल मैनेजमेंट इन टेकिंग पॉलिसी डिसीजन, सीधी बात है, पॉलिसी बनाएंगे ये लोग मिडिल लेवल मैनेजमेंट। हेल्प किस, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट उनका प्लान बता देंगे कि हमको अगले साल एक स्कूल खोलनी है, तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट बताएगा कि भाई हम पहले 1st to 8th का स्कूल खोलेंगे, या पहले हम नर्सरी जूनियर सीनियर खोलेंगे, और उस बेसिस पे हम आगे बढ़ेंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली वो वर्क करेगा। बॉटम लेवल मैनेजमेंट, अब इन लोगों से सबसे ज़्यादा मेहनत कराई जाती है, पर इन लोगों से क्या होता है, ये लोग सिर्फ इंस्ट्रक्शंस जनरली फॉलो करते हैं। तो अब ये क्या करते हैं, सुपरवाइजर का काम क्या होगा, सारे एम्प्लॉयज़ का चेक करना कि भाई वो अपने काम प्रॉपरली कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनका मोरल बूस्ट करना, उनके है ना रेगुलर चेक करना कि भाई वो रोज़ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, उनका सही से काम चल रहा है कि नहीं कर रहा, उनका ट्रांसफ़र, उनका प्रमोशन, उनकी ट्रेनिंग, ये सब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टू मेक, अब जैसे है ना भाई, सामान चौक खत्म हो गए, तो चौक खत्म हो गए तो प्रिंसिपल थोड़ी जाएगा खरीदने के लिए चौक, सुपरवाइजर बोलेगा ना भाई चौक खत्म हो गए लेके आने पड़ेंगे। तो ये जो छोटे छोटे टास्क होते हैं रॉ मटेरियल्स के, और ये सब कौन है, ये जो बॉटम लेवल मैनेजमेंट वाला है ये करेगा। जो बॉटम लेवल मैनेजमेंट का क्या काम है, उनके नीचे जितने भी लोग हैं उस सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होती है, उन सब से काम करवाना उससे होता है, उनको हायर करना, उनको फायर करना, उनको प्रमोट करना, उनको काम बताना, उनको बेसिकली कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स उनसे फुलफिल करवाना। दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बॉटम लेवल मैनेजमेंट। तो इज द लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट स्टिल इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिना बिना इनके आप डायरेक्ट एम्प्लॉयज के साथ नहीं डील कर सकते। आप सोचो कि डायरेक्ट सीईओ एम्प्लॉयज से बात करेगा, वो काम नहीं करवा पाए, उसके लिए आपको बॉटम लेवल मैनेजमेंट चाहिए होता है। सक्सेसफुल परफॉर्मेंस बाय दिस लेवल लीड्स टू अचीवमेंट ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव, जब तक ये लेवल सक्सेसफुल नहीं होगा आप अपने बिजनेस ऑब्जेक्टिव कभी भी नहीं कंप्लीट कर पाओगे, क्योंकि यही जो है ये एफिशिएंसी यहीं से आती है, क्योंकि ये मैनेजमेंट अगर वीक होगा तो आपकी एफिशिएंसी कभी भी बेस्ट रहेगी नहीं। ये जो टेबल है, ये टेबल इज लाइक अ बाइबल। अब ये क्वेश्चन जो है, डिफरेंस बिटवीन टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड बॉटम लेवल मैनेजमेंट, दिस कैन कम फॉर 5 मार्क्स। और ये 5 मार्क्स में यहाँ पे 8 पॉइंट दे रखे हैं। 8 में से बहुत इजी है, ये जो ऊपर हमने पढ़ा है ना इसको एक टेबल फॉर्मेट में लिख दिया है बस। इंक्लूड्स, तो भाई कौन 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 इसके अंदर इंक्लूडेड है, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोपोर्शन ऑफ मैनेजमेंट इज मोर एंड, देखो कितना घटिया पॉइंट है और कितना इजी पॉइंट है ये टॉप लेवल मैनेजमेंट में सबसे कम लोग होंगे, बॉटम लेवल मैनेजमेंट में सबसे ज़्यादा लोग होंगे। तो और मिडिल लेवल मैनेजमेंट में टॉप से कम, टॉप से ज़्यादा और बॉटम से कम लोग होंगे। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पे अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि भाई पूरी कंपनी उन्होंने कोई गलत डिसीजन ले लिया, अभी कोरोना के टाइम पे है ना, समझ लो ये लोग बोल रहे हैं कि हम है ना अभी एक क्या कहते हैं, एकदम ऐसा डिस्कोथेक बनाएंगे, तो अभी ऐसे में डिस्कोथेक कहाँ चलने जाएंगे, तो भैया अगर बेवकूफ़ी वाला डिसीजन लेना है तो इनकी सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इनकी सबसे लीस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो बीच वाला पॉइंट देखो, बीच वाला पॉइंट याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, किसी एक का याद कर लो, बीच वाला दोनों के बीच का होगा, लास्ट वाला जो है या तो लीस्ट होगा या तो मोस्ट होगा, दोनों में से एक होगा। नंबर ऑफ मेंबर, लेस नंबर ऑफ मेंबर्स एट टॉप लेवल, मोर नंबर ऑफ मेंबर्स कंपेयर टू मिडिल एंड, ठीक है। कॉम्पिटेंस कि कितना स्किल रिक्वायर्ड होता है, ऑल राउंड डेवलपमेंट, भाई सारा नॉलेज होना चाहिए, हर बिजनेस फील्ड का नॉलेज होना चाहिए अगर आप टॉप लेवल में हो। अगर आप अपने बॉटम लेवल में, आप का जो खाली डिपार्टमेंट है उतना नॉलेज होना चाहिए, और इसमें स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना चाहिए भाई, जितने भी फंक्शन हो
हैंडल कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज ऑफ कंपनी, तो ये ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसी बनाते हैं, ये इम्प्लीमेंट करते हैं, और ये उसको जो टॉप और मिडिल लेवल ने मिल के बनाई है उसको बॉटम लेवल पे एग्जीक्यूट करते हैं। अकाउंटेबिलिटी, भाई इनकी अकाउंटेबिलिटी किसकी है? शेयर होल्डर, गवर्नमेंट, लीगल। कोई भी कंपनी के ऊपर बाहर वाला आदमी उंगली उठाएगा तो अकाउंट टॉप लेवल मैनेजमेंट की है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट की किसी टॉप लेवल की तरफ, बॉटम लेवल की किसी मिडिल लेवल की तरफ। तो ये बहुत इजी टेबल है, इट इज़ वेरी इजी टू रिमेम्बर, और ये याद करना बहुत। अब आ जाते हैं हम अगेन दिस फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ये जो है ये और दो पार्ट है, फंक्शन मैनेजमेंट और फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट। तो आई थिंक आज के लिए बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं हम लोग। कल आप लोगों के लिए अकाउंट्स का सेशन रख रहे हैं हम लोग, और परसों जो है हम वापस से ओसी का एक सेशन रखते हैं, एंड वी विल फिनिश ऑफ दिस चैप्टर। तो आई थिंक आई कैन कंप्लीट दिस चैप्टर अगेन इन अनदर 30 minutes और सो, बट वाई टू फोर्स आवर सेल्व्स टू इट। तो हम इसको एक पार्ट 1 करके छोड़ देते हैं, और कल जो है आपका अकाउंट्स का जो पार्टनरशिप वाला जो चैप्टर था वो जितना भी कंप्लीट हुआ था वो कल हम उसको कंटिन्यू करेंगे। जो टाइमिंग ऑफ द लेक्चर है वो हम आपको व्हाट्सएप पे इन्फॉर्म कर देंगे। तो इट वाज गुड हैविंग यू। अभी तक किसी को भी डाउट है कोई तो वो पूछ सकता है इस सेशन के रिगार्डिंग में। आप अपना माइक खोल सकते हैं। तो अभी अगर टॉप लेवल, मिडिल लेवल, बॉटम लेवल मैनेजमेंट अगर आपको समझ में आ गया हो तो यू कैन, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो सो यू कैन आस्क, अदरवाइज वी विल स्टॉप द लेक्चर फॉर टुडे। एनी डाउट्स एनीवन? ठीक है, तो सिंस आई सी नो डाउट, अगर डाउट है तो आप अपना माइक स्टार्ट करके बोल सकते हो। नहीं है डाउट? ओके, तो ठीक है। नोट्स मैं फिर परसों हम जब ये चैप्टर कंप्लीट करवा देंगे मैं तब भेज दूंगा आप लोगों को। एंड 1 जून से स्टूडेंट्स आप लोगों के लेक्चर्स जो हैं वो डेली बेसिस के लिए स्टार्ट हो जाएंगे। एवरी डे देयर विल बी 2 sessions, there will be different teachers will be coming for taking these sessions. We have got special online faculties for you to take these sessions. तो प्लीज़ आई वुड रिक्वेस्ट कि आप अपने फ्रेंड से भी बात करें एंड आस्क देम टू बी अवेलेबल ड्यूरिंग दिस lectures. Okay, so now by this we will end this session for today. Thank you for coming. It was great having you.